जो आते हैं, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द that will join. Okay, now I'm giving you a question. Please note it down. Then we'll come to the board. Okay. Share screen. Okay. इसमें आगे भी है. Note this down. On 15 September 2020, at 1200 hours, an island in position 16 degrees 30 minutes north, 023 degrees 05 minutes west, go 030 degrees through distance 10 miles. Okay. Vessel then steered the following courses. Okay, note this down. ये table ऐसे है. And if you finish noting down, let me know. समय कम है.
Oh, let me know when you're finished noting down. अगला पेज दे, ठीक है? यस सर, हो गया। ओके सर, हो गया सर अभी नहीं हुआ सर, एक मिनट सर, हुआ नहीं। ठीक है। यस सर, हो गया। ओके, जस्ट ओके, राइट दिस डाउन। इसी क्वेश्चन में है okay. Clocks were retarded by 1 hour at midnight. There was engine breakdown for half an hour at 050 hour. If south-southwesterly current at 1.5 knots was setting throughout, okay, find the ship position at 16th September noon and course and distance made good known to know. Let me know when you're finished with. Okay? Yes, that's it. Okay. Yes, sir. Okay, now let's go back to the question right at the beginning of the question.
See, on 15 September 2020 at 1200 island position Soman, bore 030 distance. Now they have not given the coordinates of the vessel. They have given a bearing and distance from a lighthouse whose position is known. Now to understand this, suppose this is the bearing of the lighthouse 030. This is your distance. You know the position of the lighthouse. Okay. Now if you reverse that, suppose bearing is 030. You want to know the position, you must know the bearing from the lighthouse, bearing of the ship from the lighthouse. To reverse the bearing. So 030 will be what? Reverse the bearing. 210. 210. Okay. Now, if we get distance is 10 miles. Okay. So if we get delet and departure, we can get, जैसे हमने पहले किया है, latitude longitude of the lighthouse, इसमें delet रख दिया, यहाँ d long रख दिया, यहाँ departure निकाल कर mean latitude निकाल करके, then we get the d long, और d long latitude longitude of the position of the vessel at noon आ जाएगा. Okay, to convert this into continental course, south 30 west. ठीक है. So whenever a lighthouse bearing is given or land bearing is given and distance is given, reverse the bearing. Find the delet and departure. Okay. And then we can get the position of the vessel. Okay. Okay. Let us do that. Okay. One more thing I would like to tell you before we proceed. There is some term called leeway. आपको leeway आया है उसमें. What is leeway? Wind leeway. The change in the course due to effect of wind. Okay. The amount of drift motion to leeway due to the ship's course due to the wind vector. Okay. Component of the wind vector. So that is to be taken into account. Now see how you have to apply that. Okay. ये quadrant है. So course like this. Leeway 3 degrees दिया गया, या मान लीजिए you are steering 150 degrees. Leeway 3 degrees, wind southerly. तो leeway किधर होगा? यहाँ होगा 3 डिग्री. तो 150 minus 3. 150 minus 3 कितना हुआ? What will be course? Effective course 147. मान लो your course is here. You are steering 250 degrees true. Wind यहाँ है. 3 degrees leeway. तो effective course क्या होगा? 253 सर. 253. ठीक है. आपका कोर्स ऐसे है, विंड नदरली है. ओके. विंड नदरली है, कोर्स इज 070 डिग्रीज ट्रू, लीवे 2 डिग्रीज. लेकिन मान लो वो इधर ही हो, इधर है एंड नदरली विंड है, तो ऑन 2 डिग्री लीवे है एंड मान लो 300, so it will be 2 degrees less, 298. Okay. The effective course we obtain after obtaining the true course, we apply the leeway. Depending upon how the wind is, from which direction the wind is coming, and what is your course, वो उससे करके we get the effective course. Okay. That effective course and distance. Okay. Yesterday when we did a question. There we had a speed. In this question, they have given log. You start noon, 0, log reading 0. Okay, 2100, it is 111 log. So what is the distance traveled? What is the distance traveled? बताइए. 111. 111. 111 miles. 111 sir. 11 miles.
Okay, 120 kilometers. 0800237. What is the distance travel? 237 minus 111. Okay, ठीक है, 237 minus 111. Okay, ठीक है, very good. 237. Likewise, we get noon का total. Now, pay attention. In this question, ये हमने तो आगे की क्वेश्चन कर लिया. Okay, now इसमें in this question clocks were retarded by 1 hour at midnight. सुमेश भाई बंद कर लो यार अपना माइक. मतलब okay, जो आपका 1 hour during that period, suppose at midnight, तो midnight means from 1600 to 0400 hours, कितना घंटा हुआ? कितना घंटा है? 8 घंटा सर. 8 hours. 8 घंटा सर. 8 घंटा है ना? 8 घंटा नहीं, कितना ज्यादा ही हो, 4 Sir, 12 hours. 12 hours. 12 hours. Okay. Now had this there been speed given, तो हमारा जो इफेक्टिव सेलिंग कितना होता? 1 घंटा यदि रिटार्डेशन किया है, रिटार्डेशन, तो इफेक्टिव 12 घंटे की जगह 13 घंटा होता. 13 घंटा होगा जो सेलिंग जो किया है, 13 घंटे. तो मान लो स्पीड दिया होता, if they had given 15 knot, then we had 15 multiplied by 13 hours. 15 जो स्पीड आप कर 15 knots multiplied 30, that much distance traveled by the ship. But when the log is given, that actually has accounted for the retardation. When the log is given, log यहाँ the distance. Naturally, when you have retarded, you have traveled extra hours, so that has logged extra miles in the log. So you don't have to worry. But yes, when speed is given, आप mark कर लीजिए, when the speed of ship is given and there is a retardation. If there is a retardation, okay, or advancement, that time should be taken into account. मान लो advancement किया हो तो 11 घंटा होता. You would have taken 11 hours into that whatever speed. Okay. If there is an engine breakdown, that should be also accounted for. But when there is a log, that has already been accounted for, so you don't have to worry. Is that clear? Okay. Okay. One midnight engine breakdown for half an hour at 5 o'clock. So यहाँ से 5 o'clock now 150. Then naturally when engine breakdown, the log must have stopped. Yes or no? Yes, sir. Okay. Then again resume. Log has started. The total this logging from 4 to 1200 at 5 o'clock. There's a breakdown of half an hour. So we don't have to worry about that. That has already been accounted for. But had speed been given instead of log, had speed been given, we would have calculated this is 8 hours minus half an hour. So 7.5 hours would have taken. Okay. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, third thing, ये mark करते जाइए आप, mark करते जाइए. Third thing, current. When you are talking about current, whether ship stops, you break down, okay, isn't it? You have to, the current will be there, still vessels will be still drifting. And of course, we have to account for retardation है, 1 hour retardation. The total hours current कितना लगेगा? कितने घंटे? 1 hour retardation. 25 hours. 25 hours, sir. Okay. We don't have to worry about engine breakdown. Even if there is engine breakdown, the ship is still drifting under the influence of the current. Okay. Now further, very important thing, south-southwesterly current. Now यहाँ लोग गलती कर देते हैं. Let me go back to the board. Okay. थोड़ा मैं बता देता हूँ. Okay. Okay. Remember, you have 8 points. How many points? बताइए. 8 points, sir. 8 points. Okay. ठीक है. मैं एक का बता दे रहा हूँ. ये नॉर्थ है, ये मान लो वेस्ट है. ओके.
4 पॉइंट इज नॉर्थ वेस्ट, सबको मालूम है. Okay. The first point, and each point is how much? 11.25 degrees into 8 is equal to 90 degrees. Okay, ये 90 डिग्री का है. The first point, north by west, कितना है? 11.25 डिग्री. Then second point, north northwest. Okay. Third point, northwest by north. Fourth point is northwest. So north by west, northwest. Northwest by north, northwest. Fifth point, northwest by west. Sixth point, west northwest. Seventh point, west by north. And 8th point is west. 8 point, all 11.25, 11.25, 11.25. ठीक है? Is that clear? Same thing, मान लो हमने साउथ में लिया, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाई वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बाई साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ बाई वेस्ट. ठीक है? Is that clear? Okay. So when we have a question where we have क्या क्या है? What is the current? Current क्या है? What is the current? साउथ साउथ वेस्टर्ली. साउथ 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 साउथ. तो पता है कितना डिग्री हुआ? सर 22.5. इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कितना क्या क्या लिखोगे? साउथ 22.5 वेस्ट. वो बहुत लोग गलती करते हैं, पॉइंट में साउथ वेस्ट लिख लें. नेचुरली आपका क्वेश्चन ही गलत होगा. ये साउथ वेस्ट में 45 डिग्री, हमारा करंट 22.5 डिग्री. एंड दिस यू ऑट टू नो एज अ सेकेंड बिट. ये बेसिक्स हैं जो आपको व्हेन यू जॉइन द शिप आपको कराया जाता है. ठीक है? तो यू लिख लीजिए. रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां आपको करंट पॉइंट्स में दिया. You must know how to convert it into degrees. Okay, आपका? Is that clear? यस सर. Okay. Now we go to the question. ये हमने concept clear कर दिया. Now let us go to the question. हमको पहले तो position, let us find the position, then we go to the other point. Okay. What is the bearing position of lighthouse? पहले before let us find out the क्या दिया हुआ है, कहाँ गया? ओके, एक मिनट, मैंने शेयरिंग स्टॉप. एक मिनट आपको, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, मैंने ये शेयर किया. आपको पॉइंट्स दिखाई दिए कि मैं फिर से लिख दूं? हाँ जी, आप लोगों ने बोला भी नहीं. हाँ जी, दिखा रहे सर. हाँ जी, लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर, कर सकते हैं हम आपके स्क्रीन में. ठीक, कोई बात. ओके, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी द, हमने शेयर नहीं किया था इसलिए मैं, ओके, क्वेश्चन में जा रहा हूँ. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेसल at 1200 hour. Okay, what is the bearing of the lighthouse? So right here, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? यस सर. यस सर. यस सर. So right here, bearing of lighthouse कितना है? 030 degrees. Reverse bearing, (210 degrees true).
quadrantal, okay, south 30 west. Okay, distance कितना है? 10 miles. Okay, find the D-let. निकालिए. What is the formula? Distance into cos. cos sir. Cos, okay. तो कितना हुआ? 10 into cos 30 डिग्री. कितना आ रहा है? 8.66. 8.67 south. Departure. That is 10 into sine 30. 5 miles. यही है ना? क्या होगा? वेस्ट. Right here. ठीक है. Now we can apply this D-lat and departure to the position of lighthouse. तो position of lighthouse बताइए. Latitude क्या है? 16 degree 30 minutes now. 16 degree 30.0 minutes now. Longitude कितना है? 023 degrees 05 minutes west. 023 degrees 05.0 minutes. ठीक है. अप्लाई D-lat. कितना है? 8.67. 8.67 कितना है? ये आपकी पोजीशन हो गई. ओके. मीन लैटिट्यूड मालूम है. वी रिक्वायर मीन लैट फॉर द डी लॉन्ग. हमारे पर डिपार्चर है तो यहाँ डिपार्चर लिख लिए. 5 माइल वो लिखा ही है. 5 माइल. ओके. मीन लैट कितना है? निकालिए. 15 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 15 डिग्री 1.33 minutes. 16 degree 25 point. 16.25. तो डी लॉन्ग क्या होगा? डिपार्चर डिवाइड 5 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 16 डिग्री 5.21. रिमेंबर, आपका डी लॉन्ग हमेशा बड़ा रहेगा डिपार्चर से या बराबर रहेगा if you are on the equatorial region. ठीक है. डी लॉन्ग कभी भी छोटा नहीं होगा. डिपार्चर छोटा होता है बाय द लैटिट्यूड. कई बार गलती होती है तो ऑलवेज चेक. ओके. तो डी लॉन्ग कितना है? 5.2 वेस्ट. ओके. ऐड कर दीजिए. लॉन्गिट्यूड ऑफ द 023 degrees 10.2 minutes. सर D-lat शायद आपने गलत निकाला है. कितना है? सर 16 डिग्री 25.6. 20 minutes 53 seconds. एक मिनट देख लीजिए. क्या है हमारा कोर्स के? ओके. साउथ 10 माइल डिस्टेंस है. डिस्टेंस 10 माइल है ना. तो 10 इंटू cos 30 डिग्री 8.67 यही तो आ रहा है. सर वो ठीक है. उसके बाद यही है सर. लैटिट्यूड में जो आपने D-lat माइनस किया है वो देखिए एक बार माइनस कर देखिए कैलकुलेटर पे. 30 minus 8.67 21.33. सही है सर. सही है सर आपका. सर एमलैट थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. एमलेट कितना आ रहा है आपका? दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 2 से. 0.3 0.1 यही कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करके
21.3 ले लो, उसमें कोई बात नहीं। 0.33 तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, बट आपको 0.1 तक ठीक है, ठीक है। अब 8.7 कर दो इसको, तो 21.3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, वी हैव गॉट अ पोजीशन ऑफ द लाइट। आप लिख लीजिए पोजीशन ऑफ द शिप एट 1200 मिल गया। क्या लिखें? पोजीशन ऑफ द शिप 1200 लिख लीजिए आप। दिस इज द पोजीशन ऑफ द वेसल, ठीक है, एट 1200 ऑन 15th, ठीक है। एवरीबॉडी इज हैप्पी? किनको डाउट है? ओके, नाउ लेट अस write down because we have to find the course and distance made good and position of the vessel, EP of the vessel. तो भी जैसे हमने कल किया था, व्हाट वी ऐसे लिखिए। एंड आपने एक और चीज ऐड करनी है ट्रू कोर्स के बाद, लीवे। ओके, ट्रू कोर्स, सॉरी मैं इसको, दिस विल बी राइट हियर, effective course after applying it. This is effective course, ठीक है। Then we have quadrantal course and likewise distance, ठीक है। ये मैं मिटा दूं, ये पोजीशन वाला मिटा दें? ओके, चलिए। नाउ मेक एज ए टेबल, जैसे मैंने बताया था बनाइए। उसके बाद पहले तो लेट अस राइट डाउन फ्रॉम वेयर 1200 to 1600 और 15th 1200 to 1600, ये है ना, सेम क्वेश्चन, लाइक आइलैंड जो भी, ठीक है। कंपास कोर्स कितना है? 306। पहले डिविएशन लगाएंगे, कितना है? 2 डिग्री वेस्ट। कंपास बेस्ट, एरर वेस्ट, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना है? 304। वेरिएशन कितना है? 4 डिग्री वेस्ट। ओके, कितना हुआ? Wind, there's a westerly wind, nil leeway. So right here, westerly 0 degree. There's no effect. The effective course will be 300 degrees true. Okay, 300 degrees। हम लोग कहाँ है? 4th quadrant में। तो हमारा कितना हुआ quadrantal course? नॉर्थ। कितना हुआ? बताइए। नॉर्थ 60 west. Not 60 west. Okay, perfect. Okay, now यहाँ we have been given log, तो हम log में कितना है? 0 से 40 माइल, मतलब 1640 log किया है, तो distance travel is 40 miles through the water. So that will be this. Okay. Second, from 1600 to 16th 040, so right here 1600 to 16th 0400, क्या कोर्स है? डिविएशन कितना है? वेरिएशन 3 डिग्री वेस्ट। तो आपका ट्रू कोर्स कितना होगा? वेस्ट कंपास बेस्ट। ओके, 3 4। नाउ हियर इज अ विंड सदर्ली, योर कोर्स इज 342। आप समथिंग 342 डिग्री थ्रू आप स्टीयर कर रहे हैं ऐसे,
ओके, सदर्ली विंड लीवे 3 डिग्रीज, तो कितना होगा? सर 345 345 will be the effective course. Okay, what is the distance? Okay, quadrant फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्या हुआ? सर नॉर्थ 15 वेस्ट North 15 west. ओके, डिस्टेंस 110. 110, जो 150 minus 40, that is the distance traveled. Okay, as I said, this question had retardation also, but to apply retardation advancement, if you to calculate distance, and you apply this when the speed is given. When there is a log, it has already accounted for that. Okay, naturally आपने यदि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज्यादा टाइम किया है, ज्यादा घंटा है, तो नेचुरली लॉग ज्यादा रहेगा, ये कम है तो कम रहेगा. So this is, you don't have to worry about that. Okay, now what is the third? डिस्टेंस कितना है? Let's take the from 400 to 0400 hours to 1200 hours. सही है ना? कोर्स क्या है? 040 डिग्रीज कंपस, वेरिएशन डिविएशन 2.5 ईस्ट. क्या वैल्यू आएगी यहाँ? कंपस लीस्ट एरर ईस्ट कितना आना चाहिए बताइए? 42.5. 042.5 डिग्री मैग्नेटिक. वेरिएशन सर 440 है, 032 है सर. ओके, आपने एक कॉलम छोड़ दिया है. क्या है सर कोर्स 0400 से 1200 का 32 डिग्री 032 डिग्री सर. 032 आप देखिए 032 डिग्रीज कंपस. देखो हियर यू मेक ए मिस्टेक एक्सेप्टेबल, एग्जाम में नहीं. सर इस वाले कोर्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि 1200 का कोर्स है, अपने को 1200 की पोजीशन निकालनी है. गलती से ले लिया हमने 032. एक्चुअली क्या है कि एकदम छोटा है ना, उसमें मैं एकदम बिल्कुल ये नहीं किया है, मैंने एनलार्ज नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो गलती हो गई. ओके, बताइए क्या है, आप बताइए. 032 कितना है? ये डिविएशन कितना है? 3 डिग्री. 3 degrees. 3 डिग्री तो कितना हुआ? 035. 035. आप स्टेप वाइज चलते जाइए, नो हैसल. ओके, द वेरिएशन 2 डिग्रीज वेस्ट. कंपास वेस्ट, एरर वेस्ट 033. 033. यहाँ सदरली 3 नॉट. हमने ये है आपका डायरेक्शन जहाज का, सदरली 3 डिग्रीज है आपका, तो कितना हुआ? 030. 030. 030 is the effective force. ओके, डिस्टेंस कितना है? 225 है, कितना है? सर 235 85 माइल सर. 85. 85 माइल्स. पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो उसमें क्वाड्रेंटल फॉर्म. और 30. North 30. 0 east, and यहाँ आएगा 85 माइल्स. ओके, नाउ वी हैव टू अकाउंट फॉर द करंट एज वेल. नाउ अगेन there was engine breakdown here. There was engine breakdown.
But since this is a log, you don't have to worry. Had it been speed, some 50 knots or 40 जो भी speed है, then we would have accounted for that. आधा घंटा हम इस टाइम में से निकाल देते, and then we would have, हमको जो hours मिलता उतना. Okay. Now we have a current. Write down current also. Current कितना है? साउथ साउथ वेस्टर्ली. तो कितना डिग्री है? साउथ साउथ वेस्टर्ली मतलब 22.5 west. साउथ साउथ वेस्टर्ली मींस साउथ 22.5 वेस्ट. हमने कैलकुलेट किया. अब बताइए डिस्टेंस, बताइए कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ. 37.5. We have to multiply 25 hours with, because 24 plus 1 hour retardation into 1.5. कितना है? 37.5. Okay, everybody happy with this? Any question? Yes, sir. ठीक, रब करते हैं इसे. फिर रब दिस ऑफ. जी सर. अब हमको क्या करना है? हमको एक टेबल बनाना है. ये तो आपने बनाया, उसके बाद करेंगे. कैसे बनाया था हमने लास्ट टाइम? कल. वैसे ही हम यहाँ टेबल बनाएंगे. मैं एक कोशिश को लिखता हूँ. व्हाट वी मेक टेबल, रिमेंबर मेक दिस वे ओनली. उसमें गड़बड़ नहीं. पहले यहाँ लिखो टाइम. ठीक है. कोर्स, डिस्टेंस. ओके. टीलैट ऊपर लिखिए, फिर यहाँ लिखिए नॉर्थ, साउथ. ओके. डिपार्चर ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. फिफ्टींथ 1200 to 1600 hours. कोर्स लिखिए नॉर्थ 60 प्लस डिस्टेंस कितना है? 40 माइल. लाइन हियर. Then 1600 hours to 16th 0400 hours. ये है ना? Yes, sir. North. West. Then I can draw a line right here. 16th 0400 hours to 1200 hours. होश कितना है? नॉर्थ 30 ईस्ट. Again you draw a line. Then we are left with, हमने we have counted everything 1 2 3 and current right here. Current south 22.5, distance 37. ठीक है. आपका हो गया ये? एवरीबॉडी कहीं गलती अंदर हुई है? चेक, डबल चेक करो. कोई इसमें इनवेल्वी, या तो आपने गलत क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ो. डोंट मिस आउट. एक बार देखो बिफोर यू डू दैट. इसमें हमने ले लिया. वैसे नोबडी इज इनफैलिबल. हमसे भी गलती मिस हो गए. तो क्वेश्चन को देखो एक बार, कहीं कुछ छूटा तो नहीं. वी अकाउंटेड फॉर. Okay. Okay. Now let us find the delet and departure of each portion. Let us find out 40 into cos 60 degrees. In the first case, delet is 20 miles north. ये यहाँ डैश डालिए, यहाँ 20 माइल लिखिए. Okay. 40 into sine of 60 degree.
कितना है 34.64 वेस्ट पुट अ डैश हियर 34.64 बाद में हम इसको एक नाउ टू चेक कई बार गलती हो जाती 34 डिवाइडेड बाय 20 इनवर्स tan शुड गिव यू द कोस वही देना देखो आ रहा है 60 डिग्री चेक कर लिया जाता है गलती होती है कई बार होता है लोग डिपार्चर को डीलेट में लेते हैं डीलेट को डिपार्चर में लेते हैं होल पर्पस इज डिफीटेड तो हमेशा ध्यान रखिए कि डीलेट को डीलेट में लिखें चेक कर लिए कि नॉर्थ है वेस्ट है जो भी है तो ये गलतियां होती हैं वेस्ट है ईस्ट लिख दिया तो ऑलवेज मेक ए टेबल जैसे सर बनाया हुआ बोर्ड है में ना ऊपर दिख नहीं रहा है, लाइट पड़ रही है। हाँ? क्या हो गया बोर्ड में दिख नहीं रहा है, लाइट पड़ रही है सर। सर ऊपर से थोड़ा वो रॉड का लाइट उस पे चमक रहा है सर। एक मिनट रुको चमक रहा है कैसे एक मिनट अभी एक मिनट इसीलिए थोड़ा नीचे रखते हैं ना यस सर अब ठीक है सर। ओके ठीक है ठीक है यस सर। ओके चलिए ठीक है तो ऑलवेज चेक कर लो ये सिंपल मिस्टेक्स होती हैं एंड नोबडी इज इनफैलिबल आई एम टेलिंग यू हमसे भी होती है बट एग्जाम इज अनफॉरगिवेबल तो व्हाट यू डू चेक कर लो आपने डीलेट डिपार्चर निकाला डीलेट निकाला डिपार्चर निकाला दोनों से करके देख लो वही कोर्स है कि नहीं यू आर अंडर प्रेशर है तो उसमें ये सब चीजें की जाती है तो गलती नहीं होती ओके नेक्स्ट लेट्स सी 110 डिग्री एंड रिमेंबर नेचुरली नॉर्थ 60 वेस्ट आपका डिपार्चर ज्यादा होगा डीलेट कम होगा बिकॉज ईस्ट वेस्ट कंपोनेंट एज आई सेड 045 पे वही रहेगा सब दोनों बराबर रहेगा यदि लैटिट्यूड यदि नॉर्थ साउथ कंपोनेंट ज्यादा तो सपोज इट इज 0 to 0 naturally डीलेट विल बी मोर देन द डिपार्चर because east west component will decrease as you go further from 045 तो आपका ईस्ट वेस्ट कंपोनेंट बढ़ेगा तो ये चीज ध्यान हमेशा दिमाग में घूमती रहनी चाहिए तो यू डोंट मेक मिस्टेक ओके 110 डिग्रीज 1010 miles into cos of 15 degrees 106.25 कितना आ रहा है यही आ रहा है क्या है नॉट 106.25 उसके वेस्ट है तो साउथ पे डैश डालिए ईस्ट पे डालिए अब निकालिए बताइए कितना हुआ 28.5 48.5 28.5 west 20 कितना होता है 28.5 सर 28.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 15 डिग्रीज 28.47 हाँ 28.5 ले लिए 28.5 चलो हम इसको 2834.6 बोल गए ठीक है आप चेक करें नेक्स्ट 85 माइल 73.6 cos 73.6 क्या है नॉर्थ ओके ईस्ट है तो ये डैश और यहाँ डैश डाल कैलकुलेट कीजिए कितना है 42.5 east 42.5 फाइनली देखो करंट करिए साउथ है तो ये नॉर्थ पे डैश डालिए एंड 34.7 कितना है 34.7 34.7 south
34.64 आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 7. It's not a big deal. 0.7. Into sine, into, sorry, 22.5 degrees is equal to 34.64. Okay, 60. Okay, departure 37.5 into sine of 14.4. 14.35. 14.4 ले लीजिए। क्या है? साउथ, ये है हमारा करंट, क्या था? वेस्ट, यहाँ वेस्ट कितना है? 14.3। ओके, 14.04 ले लो, कोई बात नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम इसको ऐड करेंगे, नॉर्थ एट डी लैट, साउथ डी लैट सेपरेट, and then eventually we'll subtract the smaller ones from larger ones, and that will be the final D lat after doing all these courses. So let us sum it. Okay, कितना है? 20 plus 106.25. 165.1. 20 plus 106.25 plus 73.6. कितना है? 165.1. ये तीनों को ऐड कीजिए ना, 199.85. 85 नॉर्थ, ये 34.6 साउथ। इफेक्टिव डीलेट क्या होगा? माइनस 165.24। यहाँ दिखाइए 34.6 साउथ माइनस कर दिए, तो आपको कितना है? 165.25। ये तो हो गया। 42.5 ईस्ट, वेस्ट का जोड़ी कितना है? 77.46 है। 34.6 कितना? 77.46। सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव ले लिया, 77.46 आ गया। ओके चलो, 77.5 ठीक है। नियरेस्ट तक पॉइंट 1 में चाहिए हम, तो जहाँ दोनों लिखा है इवेंचुअली 0.1 तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जाने की जरूरत। ओके, अब 0.1 में तो पॉइंट डेसिमल में आना चाहिए, तो जरूरत नहीं है। अब 2 का लिखते हैं, बाद में इफेक्टिवली उसको कन्वर्ट करके फिर वो। ओके, माइनस 42.5। तो आपका डिपार्चर कितना है? 35.04. 35.0। ओके, 35.0 ठीक है। तो हमको तो मिल गया डीलेट, इफेक्टिव डीलेट और डिपार्चर मिल गया। लेट अस फाइंड द कोर्स मेड गुड। कोर्स मेड गुड कितना होगा? डिपार्चर Tan of course equal to Tan departure upon course delay. equals to departure upon dlet is equal to tan course. So we write here tan course is equal to departure upon dlet. You know that कितना है? 11 degree 58.5. 0.25 is equal to formal shift tan कितना हुआ? $11.97 डिग्री। कन्वर्ट कर दो इसको, 360 से माइनस कर 11 degree 58 minutes। ठीक है, 360 से माइनस किए तो आपको 3 फिगर में आ जाएगा। ओके, लेट अस फाइंड द नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है? यस सर। अब इसको, ये आपका कोर्स आ गया, उसको 3 फिगर में भी कर सकते हैं, 360 में माइनस कर दीजिए, दैट इज 348 डिग्रीज और 388 पर 348.04 डिग्रीज।
ठीक है, ये हो गया। डिस्टेंस मालूम कीजिए। D lat upon cos course. कोई भी कर सकते हैं। 165.2 165.25 डिवाइड बाई cos ऑफ 11.95 कितना है 168.91। आप डिपार्चर से भी चेक कर लीजिए। 35 डिवाइड बाई साइन ऑफ 11.95 169. ठीक है, वही है दूसरे 169.0 सेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमको पोजीशन चाहिए, पोजीशन ऑफ वेसल एट नून। हमारा पोजीशन ऑफ लाइट हाउस हमने निकाला था। वी हैड फाउंड आउट द पोजीशन ऑफ द लाइट हाउस। देखिए पहले पोजीशन उससे सॉरी पोजीशन ऑफ द वेसल एट 1200 फ्रॉम द लाइट हाउस, अब फ्रॉम दैट लैंड आइलैंड से, फ्रॉम आइलैंड वी हैड फाउंड द पोजीशन ऑफ द वेसल एट 1200। हमको पोजीशन मिल गई थी कहां से, लाइट हाउस। ओके, तो पहले लिखिए पोजीशन ऑफ द वेसल ऑन 15th नून। ये मिटा दें, ये मिटा दें। यस सर। Right here, position of ship on सर दिख नहीं रहा। on 15th or at 15th 12। कितना था पोजीशन निकाला था हम लोगों ने, बताइए। क्या पोजीशन बोलिए। हाँ जी, So 16 degree 21.33 minutes north. कैन हियर मी? क्या है, आधी आवाज सुनिए, कितना बताइए। The 16 degree 16 degrees 21.33 minute north. 33 minutes north. Okay, longitude 023 degree 023 degrees 10.2 minute west. 10.2 minutes west. Okay, this is the position of the vessel जो हमने निकाल लिया था। अब उसमें टी लाइट लगा देंगे सीधे, टी लाइट लगा देंगे। कितना है 165.25 नॉट। तो बताइए कन्वर्ट इनटू डिग्रीज एंड मिनट्स। टू डिग्रीज 45.25, यही है ना। तो ये हो गया 3 2 5 6, मेक इट 6। ये सब 3 पर इसको सब ये कर दो। ओके, देन 45 और 15 1 हो गया 606। यहाँ 8 है 17 प्लस 2 19 degree 6.5 6.6। हाँ 6.6। ओके, डी लैट तो मिल गया। अभी हमको डी लॉन्ग चाहिए। व्हाट वी हैव, डिपार्चर। तो वी मस्ट कन्वर्ट डिपार्चर इनटू डी लॉन्ग। तो उसके लिए क्या चाहिए, मीन लैटिट्यूड चाहिए। फाइंड आउट द मीन लैटिट्यूड निकालिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, बताइए। मीन लैटिट्यूड कितना है, degree 43.9। 17 डिग्री 43 क्या 44 मिनट्स।
17 degrees 44 minutes. ओके, तो डी लॉन्ग कितना होगा? ये 5 से डिवाइड बाय, हमको 35 डिवाइड बाय कॉस ऑफ मिलियन, 17 डिग्रीज 44 मिनट, 36.75. ओके, 36.7, यहाँ 36.75. डिपार्चर वेस्ट और डी लॉन्ग भी वेस्ट होगा, वेस्ट टू मोर वेस्ट ऐड कीजिए, 95, 36 है 46, okay, everybody is happy? Everybody is happy? Yes. Okay. ओके, नाउ ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ घर से. अभी आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंट हो गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है. नाउ यू नो व्हाट इज दिस क्वेश्चन एट होम. एक मिनट, लेट मी गो बैक. यू मस्ट शेयर कर लो स्लाइड को शेयर कर लीजिए. इफ यू नीड बी यू कैन टेक ए स्नैपशॉट. ओके, ये करंट वाला तो मैं बाद में कराऊंगा. ये स्लाइड देख रहे हैं आप? ओके, August 15 at noon, point on land bore so much, bore north 70 east. Okay, by compass into landmark. Ship's head north. Now pay attention to this question. ये क्वेश्चन आप करके रहिए, हम क्लास में बाद में करेंगे. देखो यहाँ शिप्स हेड किस में दिया है? कंपास हेड में. बिकॉज हमको यहाँ जो बेयरिंग दी है नॉर्थ 70 ईस्ट, पहले कन्वर्ट इनटू 3 फिगर, तो नॉर्थ 070 हुआ. ओके, that is compass, by compass. तो you have to apply deviation. यहाँ हमको कहाँ से डिवीजन दिया ही नहीं, यहाँ तो शिफ्ट हेड दिया 068. Now see 12 o'clock, ये 12 o'clock जो आपका, they expect you to pick up the deviation variation from the table. तो 12 बजे 068 है, नॉर्थ 68 वेस्ट है. ये देखो नॉर्थ 68 वेस्ट है, तो इसका जो डिविएशन है 3 डिग्रीज. वेरिएशन यहाँ नीचे दिया हुआ है. नोट दैट वेरिएशन 8 डिग्रीज ईस्ट, तो आप 3 डिग्री ईस्ट और 8 डिग्री 11 डिग्रीज आप लगा देंगे यहाँ. तो देन यू विल गेट द 11 डिग्री इसमें बेरिंग. रिमेंबर यहाँ जो भी कंपास कोर्स दिया हुआ है क्वाड्रेंटल फॉर्म में दिया हुआ है. किस फॉर्म में? क्वाड्रेंटल फॉर्म. कन्वर्ट इनटू 3 फिगर बिफोर यू अप्लाई डिविएशन एंड वेरिएशन. आप इसमें नहीं लगाएंगे, आपका गलत आएगा. कन्वर्ट इनटू 3 फिगर नोटेशन. जैसे नॉर्थ 68 वेस्ट है तो कितना हुआ आपका 292 पे, तब आप 3 डिग्री तो 295 हुआ. पर 8 डिग्री लगा है तो 295 प्लस 8 303 हुआ. तो यू हैव टू, इसमें मैं यही बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ यही क्या चाहिए, कन्वर्ट इनटू. लोग इसी पे लगा देते हैं. कन्वर्ट दिस इनटू 3 फिगर्स, अप्लाई द डिविएशन एंड वेरिएशन. अब उसके बाद जो ट्रू कोस है उसको फिर क्वाड्रेंटल कोस में करना. ओके, यहाँ टिल नून वेरिएशन 8 डिग्रीज फॉर द फर्स्ट 12 आवर्स एंड 6 डिग्रीज आफ्टरवर्ड. तो आप मिडनाइट तक आप लगाएंगे फर्स्ट 12 आवर्स. ये कितना, तो आप यहाँ 2100, इसमें मिडनाइट पे आकर के 8 डिग्री, मिडनाइट से 2100 आवर्स. ठीक है, उसके बाद find the course and distance from noon to noon and her DR position on 16th noon, because no, they have not given the current, कोई करंट नहीं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके आइए, होमवर्क को. स्नैपशॉट ले लिया सबने? सबने स्नैपशॉट ले लिया? Yes. Yes, sir. तो करके आइए. Yes, sir. You will develop minutes. So it's not a big. Don't panic. आराम से टेबल बनाइए. ओके, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट जनरली इतना लेंदी आता नहीं है, बट ये एमएमडी का ही क्वेश्चन है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
तो आप क्या करोगे, मेक टेबल, कन्वर्ट दैट इनटू सिस्टमेटिक फैशन, फोर्सेस एंड डिस्टेंस, एंड देन अप्लाई। नाउ यहाँ जो है स्पीड दी हुई है, तो यू नो इफ देख लो यहाँ कोई नो चेंज इन द, कोई रिटार्डेशन एडवांसमेंट नहीं है, कोई इंजन ब्रेकडाउन नहीं है। यदि वो होता तो वी वुड हैव काउंटेड फॉर जिस टाइम पे जिस ड्यूरेशन में पड़ता उस समय हम लोग उतना बताते बढ़ाते। ओके, इज दैट क्लियर? आपने नोट डाउन कर लिया ये क्वेश्चन, इसको स्नैपशॉट ले लिया आपने? यस सर, थैंक यू सर। इसको करके लाइए एंड यू कैन सेंड द, ओके अभी ग्रुप तो बनाया नहीं हमने, ओके यू कैन कंफर्म, ये कंफर्म कर आंसर आप कर लीजिए, फिर अभी जो क्लास पड़ेगी तो उसमें हम चेक करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। let's take Thank a you, break. sir. Okay, thank you.